متاثرین سیلاب کی مدد میں کوئی سیاست نہیں کی جا رہی، بلا امتیاز مدد کر رہے ہیں، ہمیں سیاست سے پرہیز کرنا چاہیے۔ NFRCC کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے بتایا کہ NDMA نے متاثرین میں رقوم تقسیم کی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سیلاب میں 1700 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے ہیں، زخمیوں کی بھی مالی امداد کی جا رہی ہے۔ متاثرین سیلاب میں 66 ارب روپے تقسیم ہو چکے ہیں۔ عمران خان کا آڈیو لیک کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع۔ سابق وزیر اعظم نے آڈیو لیک کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن یا مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنانے کی استدعا کر دی ہے۔ استدعا میں کہا گیا ہے کہ ڈیٹا ریکارڈنگ اور آڈیو لیکس کو غیر قانونی قرار دیا جائے، آڈیو لیکس کی تحقیقات کرا کر ذمہ داران کو سزا دی جائے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی بریت کے خلاف اپیلیں خارج۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق صدر کی بریت کے خلاف اپیلوں پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس عطا بن اللہ نے کہا کہ قومی احتساب بیورو کی اپیلیں واپس لینے کی درخواست بھی منظور کر رہے ہیں اور میرٹ پر خارج بھی کر رہے ہیں، کیونکہ نیب کی اپیلیں میرٹ پر بنتی ہی نہیں تھیں۔ ٹرانسجنڈر ایکٹ کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں ٹرانسجنڈر ایکٹ کے خلاف دائر درخواست میں وفاقی حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ ٹرانسجنڈر ایکٹ کے رولز حقائق کے برعکس ہیں اور رولز کے مطابق کوئی بھی مرد یا عورت جنس کی تبدیلی کا شناختی کارڈ بنوا سکتا ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ ٹرانسجنڈر ایکٹ کے تحت شناختی کارڈ کے لیے کسی میڈیکل کی ضرورت نہیں ہے۔ ایکٹ کے رورل اسلامی تعلیمات اور قوانین کے منافی ہیں۔ پاکستان روس سے تیل خریدے گا، امریکہ کو کوئی اعتراض نہیں۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ایسوسی ایشن کانفرنس سے خطاب اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے پیش گوئی کی کہ آنے والے دنوں میں مہنگائی کم ہوگی اور میری کوشش ہے کہ ملک کو سودی نظام سے نکالوں اور اسلامی نظام لاؤں۔ FATF کے حوالے سے پاکستان نے اپنا کام مکمل کر دیا، معیشت پر فیصلے کرنے میں آزاد ہوں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ CPEC منصوبوں میں توانائی کے منصوبوں کے لیے نجی شعبہ سے مدد لی گئی۔ روس سے اگر بھارت تیل لے سکتا ہے تو ہم بھی لے سکتے ہیں۔ PTI رہنما سینٹر اعظم سواتی کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت کے جج راجہ آصف نے سینٹر اعظم سواتی کی درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ FIA پروسیکیوٹر نے اپنے دلائل میں کہا کہ اعظم سواتی نے ٹویٹ کے ذریعے آرمی چیف کے خلاف نفرت انگیز بیان دیا اور فوج میں بغاوت کی کوشش کی۔ عدالت نے دونوں فریقین کے دلائل سننے کے بعد اعظم سواتی کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا، جو کل سنایا جائے گا۔ کراچی میں پولیس اور رینجرز کی کارروائی، MQM لندن کا ٹارگٹ کلر گرفتار۔ ترجمان رینجرز کے مطابق گرفتار ٹارگٹ کلر بھارتی خفیہ ایجنسی رو سے تربیت یافتہ ہے۔ ملزم وسیم ٹارگٹ کلنگ بھتہ خوری کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہے۔ ترجمان رینجرز کا کہنا ہے کہ گرفتار ٹارگٹ کلر سے اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ ٹارگٹ کلر 2013 میں بیرون ملک فرار ہو گیا تھا۔ بھارتی ٹیم کا ایشیا کپ 2023 کے لیے پاکستان جانا سیکیورٹی رسک ہوگا۔ ٹیم کے جانے کا فیصلہ صرف بھارتی وزارت داخلہ کرے گی۔ بھارت کے نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے وزیر انوراگ ٹھاکر نے PCB کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کسی کی بات سننے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یہ بھی BCCI کا معاملہ ہے اور وہ اس پر تبصرہ کریں گے۔ T20 ورلڈ کپ کے سپر 12 مرحلے کے لیے پاکستانی اسکواڈ برسبین سے میلبرن روانہ۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کل سے میلبرن میں ٹریننگ کا آغاز کرے گی۔ ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم پہلا میچ روایتی حریف بھارت کے خلاف 23 اکتوبر کو کھیلے گا۔ میلبرن کے بعد قومی ٹیم پرتھ میں 27 اور 30 اکتوبر کو کوالیفائرز کے خلاف میچز کھیلے گی۔
मुल्क भर में आलमी वबा कोरोना वायरस के वार थमने लगे। मस्बत केसेस की शरह में वाज़ह कमी। कौमी इदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 9,447 टेस्ट किए गए, जिनमें से 54 नए अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना मस्बत केसेस की शरह 0.57% रही है। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में साल रवां की पहली बर्फबारी शुरू हो गई। मौसम मजीद सर्द हो गया। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों इलाकों मूसलाधार बारिश। गिलगित बल्तिस्तान के जिला आमिर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। सियाहती मकामात बाबूसर टॉप और गेटी दास समेत दीगर मलिका इलाकों में भी शदीद बर्फबारी शुरू हो गई। चलास चलखट रोड जुज़वी तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। नाराज में भी बर्फबारी शुरू होने से करबो जवार के इलाकों का मौसम निहायत सर्द हो गया है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं सफ़ा रियाज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, इमरान खान ने ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। साबिक वज़ीर आज़म ने ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन या मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने की इस्तदा कर दी। इमरान खान ने मजीद ऑडियोज़ को लीक रोकने की भी इस्तदा की है। इस्तदा में कहा गया है कि वज़ीर आज़म हाउस और ऑफिस की निगरानी, डेटा रिकॉर्डिंग और ऑडियो लीक्स को गैर कानूनी करार दिया जाए। ऑडियो लीक्स की तहकीकात कराकर जिम्मेदारान को सजा दी जाए और हुकूमत और मुतलका अथॉरिटीज़ को मज़ीद ऑडियोज़ की रिलीज़ को रोकने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में वज़ारत दाखिला, वज़ीर दिफा, IT और वज़ारत इत्तलाआत के साथ दरख्वास्त में IB, FIA और पैमरा को भी फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में कहा गया कि इमरान खान यानी दरख्वास्त गुजार की अहलिया की पहली ऑडियो 28 सितंबर को मंजर आम पर आई, जिसको दरख्वास्त गुजार झूठा समझता है। अब तक 12 ऑडियो लीक्स मंजर आम पर आ चुकी हैं, जिनमें मौजूदा वज़ीर आज़म की ऑडियो भी शामिल है। इस अमल से जाहिर होता है कि वज़ीर आज़म ऑफिस और हाउस को अंडर सर्वेलेंस रखा गया। दरख्वास्त गुजार ने बतौर वज़ीर आज़म इसके लिए इजाज़त नहीं दी थी। गैर कानूनी सर्वेलेंस खतरनाक अमल है। वज़ीर आज़म ऑफिस और हाउस में रोज़मर्रा को मुल्क के मफाद के लिए अहम बहस होती है और फैसले किए जाते हैं। इस तनाजुर में दोनों जगहें बहुत ज़्यादा हसास हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बरियत के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बरियत के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस अतम मिनुल्लाह ने कहा कि कौमी एहतसाब ब्यूरो की अपीलें वापस लेने की दरख्वास्त भी मंजूर कर रहे हैं और नैब की अपीलें मेरिट पर खारिज कर रहे हैं, क्योंकि नैब की अपीलें मेरिट पर बनती ही नहीं थी। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि नैब के पास मेरिट पर कोई केस नहीं है। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने केसेस वापस लेने की दरख्वास्त दायर की है और अपील मेरिट पर नहीं बनती, इसलिए तो मुतलका अथॉरिटी ने अपीलें वापस लेने की मंजूरी दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने कई बार कहा यह अपील मेरिट पर भी नहीं बनती। क्या नैब ने कोई इंक्वायरी की? केस का रिकॉर्ड कहाँ गया? जस्टिस अतम मिनुल्लाह ने कहा कि नैब की अपीलें वापस लेने की दरख्वास्त भी मंजूर कर रहे हैं। नैब ने दरख्वास्त में कहा था कि अपीलों की मज़ीद प्रोसिक्यूशन एक लाहासिल मश्क होगी और आसिफ जरदारी के खिलाफ दस्तावेज़ात की फ़ोटो कॉपियाँ मुश्किल से रिकॉर्ड हैं। दस्तयाब दस्तावेज़ी शवाहिद कानून शहादत के मुताबिक नहीं। आसिफ जरदारी ट्रैक्टर पोलो ग्राउंड और SSG को टेक्ना में बरी हुए थे, जबकि नैब ने आसिफ जरदारी की बरियत को 2015 से चैलेंज कर रखा था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुतासरीन सैलाब की मदद में कोई सियासत नहीं की जा रही, बिला इम्तियाज़ मदद कर रहे हैं। हमें सियासत से परहेज़ करना चाहिए। NFRCC के इजलास में खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बताया कि NDMA ने मुतासरीन में रकूम तकसीम की हैं। उन्होंने बताया कि सैलाब में 1700 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए हैं। ज़ख्मियों की भी माली इमदाद की जा रही है। मुतासरीन सैलाब में 66 अरब रुपये तकसीम हो चुके हैं। वो थ्रू NDMA इन्हीं जो इलाके हैं चारों सूबों में उनमें तकसीम ये किया गया और बहुत अच्छे तरीके से NDMA ने इसकी जिम्मेदारी संभाली। सूबों में PDMS थी, उनको ऑन बोर्ड लिया और ये इस तरह ये डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल बहुत ट्रांसपेरेंट और अच्छे तरीके से था। अभी भी जो कुछ सर्दियाँ आ गई हैं, मुझे चीन से वो विंटर टेंट्स वो भिजवा रहे हैं, बड़े वो
سنا ہے کہ بڑی اچھی کوالٹی کے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تقسیم ہوں گے۔ اب جو بجائی ہونی ہے فصل کی، اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ نے، جناب طارق بشیر چیمہ صاحب نے اور احسن اقبال صاحب نے مل کے یہ پلان بنایا صوبوں کے ساتھ کہ جی 50-50 بیسس پہ ہم اس کو تقسیم کریں گے یہ بیج کو، اور بہت اچھی کوالٹی کا انڈیا میں بیج پرکیور کر رہا ہے۔ صوبہ سندھ نے فوری طور پر انہوں نے حامی بھری، ان کا جی بالکل یار ہماری حریف گورنمنٹ ہے وہاں پہ۔ صوبہ بلوچستان نے بھی اپنا ماڈل بنا دیا کہ یہ اضلاع وہ خود کریں گے 50%، اور یہ اضلاع این ڈی ایم کو دے دیے کہ یہ آپ کریں۔ اب کے پی نے اور انہوں نے پنجاب نے باوجود ہمارے گزارش اور درخواست کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں چاہیے۔ آج پھر میں اس میٹنگ کے ذریعے اپنے ان صوبوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ کوئی اس میں سیاست نہیں ہے، آپ یہ پاکستان سانجا ہے سب کا، چاروں صوبے شامل ہیں اس میں، سندھ اس میں کے پی شامل ہے، اپنا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر، یہ ہم سب کا سانجا ملک ہے، مشترکہ ملک ہے، اور یہ وفاق ہے، وفاق ان اکائیوں سے بنتی ہے۔ تو اس میں we are above our personal likes and dislikes and personal political likes and dislikes، اس میں کوئی سیاست نہیں۔ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 کے رولز 2020 کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں ٹرانسجنڈر ایکٹ کے خلاف دائر درخواست میں وفاقی حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ دائر کردہ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ ٹرانسجنڈر ایکٹ کے رولز حقائق کے برعکس ہیں، اور رولز کے مطابق کوئی بھی مرد یا عورت جنس کی تبدیلی کا شناختی کارڈ بنوا سکتا ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ ٹرانسجنڈر ایکٹ کے تحت شناختی کارڈ کے لیے کسی میڈیکل کی ضرورت نہیں ہے۔ ایکٹ کے رول اسلامی تعلیمات اور قوانین کے منافی ہیں۔ دائر کردہ درخواست میں استدعا کی گئی کہ لاہور ہائی کورٹ ٹرانسجنڈر ایکٹ کے رولز 2020 کو کل عدم قرار دے۔ ٹرانسجنڈر پروٹیکشن ایکٹ میں خواجہ سراں کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ خود اپنی جنس کی شناخت کر سکتے ہیں اور اسے تبدیل کروا سکتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ رینالہ خرد کے تمام سکولوں میں ڈینگی کے خاتمے کے لیے آگاہی مہم چلا رہے ہیں۔ صفائی ستھرائی کو ہر ممکن یقینی بنایا جا رہا ہے۔ سی ای او ایجوکیشن اوکارا ڈاکٹر محمد ارشد کی کوہ نور نیوز سے خصوصی گفتگو۔ مزید کیا کہا جانتے ہیں اپنے نمائندے چوہدری عمران سے، جو اس وقت سی ای او ایجوکیشن اوکارا ڈاکٹر محمد ارشد کے ساتھ موجود ہیں۔ جی چوہدری عمران، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں موجود ہوں سی او ایجوکیشن اوکارا ڈاکٹر محمد ارشد صاحب کے ساتھ۔ آج ہم ان سے جانتے ہیں سر، ضلع بھر میں صفائی ستھرائی کے حوالے سے خصوصاً کیا انتظامات اسکولوں میں کیے جائے؟ دوسرے اور ڈینگی مچھر بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، کیا کوئی آگاہی مہم بھی چل رہی ہے؟ اس حوالے سے بتائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں کوہ نور ٹی وی کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اس طرف توجہ دلائی، اور میڈیا کے ذریعے ہم جو اویئرنیس کیمپین ہے یہ بھی ہمارے سسٹم کا حصہ ہے۔ جہاں تک تعلق صفائی ستھرائی کا ہے تو یہ ہر سکول کے اندر یہ چیک لسٹ ہم نے بنا کے دی ہے کہ یہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہیڈ ماسٹر جو ہیں یا پرنسپل ہیں یا ہیڈ مسٹرز ہیں وہ ان چیزوں کو چیک کرے گا جاتے پہلے ہی۔ اس کے علاوہ 25 پوائنٹ ہیں، اس پہ ہم نے ایک چیک لسٹ بنائی ہے، اس میں تمام چیزیں شامل ہیں، جس میں ڈینگی سے ریلیٹڈ ایس او پیز بھی شامل ہے، اس پہ عمل درآمد کرنا، زیرو پیریڈ ہے، اویئرنیس ہے، بلکہ وہاں تک یہاں تک ہم چلے گئے ہیں کہ بچوں کے ذریعے ہم والدین تک بھی یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ پانی کسی جگہ کا نہیں ہونا، ڈینگی پھیلتا ہے۔ اور اس طرح سے جو اس کے علاوہ ساتھ ساتھ ہم جہاں پہ سکولز کی صفائی ستھرائی، اس کے باقی جو ایڈمنسٹریٹو معاملات کو دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم تدریس کے اوپر بھی توجہ دے رہے ہیں۔ اساتذہ کو ہم نے منع کر دیا ہے کہ کوئی استاد جو ہے وہ اپنے دوران کلاس موبائل یوز نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ ایکٹیو ٹیچنگ کرے گا، کم از کم آدھا پیریڈ جو ہے وہ کھڑے ہو کے اپنا وائٹ بورڈ کو استعمال کرتے ہوئے بچوں کے ساتھ
जो इंटरेक्टिव टीचिंग है उसकी तरफ तवज्जो देगा तो इंशाल्लाह इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जैसा कि हमें सी एजुकेशन के उनका कहना है कि कोई भी साज़ा इकराम अपनी क्लास रूम के अंदर मोबाइल लेके नहीं। चौधरी इमरान, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क में बढ़ती महंगाई, बिगड़ती सूरत हाल और बैन अल-अक़वामी हालात और वाक़यात के हवाले से फ़िक़्क़ा जाफ़िया से ताल्लुक़ रखने वाली तंजीमों का इजलास फैसलाबाद में मुनक्किद हुआ, जिसमें ज़िले अमन कमेटी के अरकान ने भी शिरकत की। मज़ीद जानते हैं फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे सैयद मुरीद हुसैन से। जी सैयद मुरीद हुसैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और बिगड़ती हुई सूरत हाल और इंटरनेशनल हालात और वाक़यात के हवाले से शिया तंजीमों की जानिब से आज फैसलाबाद में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें खसूसी तौर पर जो ज़िले अमन कमेटी थी उसने भी शिरकत की है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेंबर ज़िले अमन कमेटी सैयद इफ्तिखारुल हसन नकवी। हम उनसे इसी वाले से मज़ीद जानते हैं। जी इफ्तिखार साहब, बताइएगा, आज यहाँ पर शिया तंजीमों ने एक इकट्ठ किया है और मुल्की हालात के ऊपर बात की है, आप भी यहाँ पर शामिल हुए हैं, आपका मज़ीद क्या कहना है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि आज यहाँ पे जो हमारी शिया एग्जेक्टिव और तमाम तंजीमों की नुमाइंदगान की एक भरपूर मीटिंग हुई है, जिसमें जो पाकिस्तान को इस वक्त दरपेश हालात हैं उनके ऊपर गौर व खौस किया गया है और इस बात पे तशवीश का इजहार किया गया है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा है और उसके अगेंस्ट लोगों की सैलरीज़, उनके पास वसाइल बहुत कम हैं और इसके साथ साथ जो जॉब्स हैं वो ना अवेलेबल ना होने की वजह से हमारे क्राइम जो है, स्ट्रीट क्राइम, वो बढ़ रहा है। तो लिहाजा इस वक्त फौरी तौर पर हुकूमत के लिए ज़रूरी है कि वो ऐसे इक़दाम करें कि इन चीज़ों को रोका जा सके, वरना ये एक गंभीर मसला, एक इंसानी मसला, एक मसला। जी, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और दीगर जो जितने भी मामलात हैं उसके ऊपर तशवीश का इजहार किया गया शिया तंजीमों की जानिब से और इस चीज़ का इयादा किया गया है कि शिया जितने भी हैं मुल्क। मुरीद हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया। चिश्तिया में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट और वसीला तालीम प्रोग्राम के तहत मिलने वाली रकम से रोज़ाना की बुनियाद पर कई घराने मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे ताहिरुल हसन से। जी ताहिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चिश्तिया में हुकूमत की जानिब से औरतों के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत जो रकम का सिलसिला है वो जारी है। अगर बताएँ तो चिश्तिया में सैकड़ों घराने ऐसे हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर हुकूमत की तरफ से जारी करदे इस स्कीम के तहत मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर राना तैयब साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा राना साहब, आपके यहाँ फ्रेंचाइज से और चिश्तिया पूरी में कितने लोग जो हैं वो इस हुकूमत की जानिब से जो ये स्कीम है इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन चिश्तिया में जो मेरी फ्रेंचाइज से है तकरीबन 150 से 200 लोग जो हैं डेली औरतें पेमेंट लेके जाती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी चिश्तिया से तकरीबन 1000 के करीब जो है ना मुख्तलिफ रिटेलरों से पेमेंट डिस्पर्स हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से और स्मूथ तरीके से सारी पेमेंट डिस्पर्स हो रही है। अच्छा राना साहब, क्या कहते हैं, यहाँ पर जितनी भी औरतें आ रही हैं, क्या देख रहे हैं कि ये वाकई मुस्तहिक हैं इस रकम के लिए? जी जी बिल्कुल, इनका बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरतमंद होती हैं और हुकूमत ने बहुत अच्छा ये इक़दाम किया है कि इन औरतों को पैसे मिल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से पैसे मिल रहे हैं और इज़्ज़त के साथ। ये बीबी मेरे साथ आई हैं, इनके 12,000 रुपये आए हैं, ये मैं इनको 12,000 रुपये दे रहा हूँ। ये मेरे साथ यहाँ पर मुस्तफ़ीद होने वाली औरत भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। बीबी बताइएगा, आप कितने दिनों से ये पैसे ले रही हैं और क्या कहेंगे इस हवाले से? यहाँ पर पैसे लेने के लिए किसी किस्म की आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं भाई, मैं पहली दफ़ा यहाँ इधर आई, आज पहले दिन ही आई हूँ। पहले दिन ही मुझे बड़ी आराम से तसल्ली से पैसे मिल गए हैं मुझे। जी, इस पर आप हुकूमत को क्या कहेंगे? ये जो आपको 12,000 रुपये मिली है, इससे आपका दरगुजर जो है वो आसानी से हो जाएगा? उनका शुक्रिया अदा करूँगी मैं, जान के पहली बार जो मैं दिए पैसे उनका। कि यहाँ पर आपने दुकानदार, रिटेलर और यहाँ पर आए मुस्तहिक जो औरत है उनकी बात सुन, उनका कहना है, दुकानदार का कहना है कि यहाँ पर 150 से 200 के यहाँ पर जो रोज़ाना की बुनियाद पर औरतें हैं मुस्तहिक घराने जो है वो इस स्कीम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और यहाँ पर जो बीबी आई है उनका कहना है कि हम जो है ताहिरुल हसन, आपका बहुत शुक्रिया। जंग DHQ अस्पताल में करोड़ों रुपए का स्क्रैप पड़ा हुआ है, जिसकी अगर नीलामी करती जाए तो DHQ अस्पताल में करोड़ों का रेवेन्यू आ सकता है। इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ जावेद इकबाल गवांस DHQ अस्पताल में मौजूद हैं। जी जावेद, बताएगा इस हवाले से मेडिकल सुपरिटेंडेंट का क्या कहना है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं DHQ अस्पताल में मौजूद हूँ। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर सैयद इर्तजा शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे जान लेते हैं कि जो जंग में करोड़ों रुपए का स्क्रैप पड़ा हुआ है, अगर उसकी नीलामी कर दी जाए तो गवर्नमेंट को इसका फायदा पहुंच सकता है, ना कि नुकसान पहुंच सकता है। इस हवाले से हमारे साथ डॉक्टर इर्तजा शाह साहब MS साहब मौजूद है, उनसे जान लेते हैं उनका क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास हॉस्पिटल में कुछ पुरानी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो कि स्क्रैप की मद में हैं, उनकी कंडमिनेशन भी हो चुकी है, तो मैंने उसके लिए प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी है ताकि हॉस्पिटल में स्पेस क्रिएशन भी हो, प्लस जो है जब वो चीज़ों की नीलामी हो जाएगी तो डेफिनेटली
लिए गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी आएगा। जी बिल्कुल, एमएस साहब का यही कहना है कि अगर इनकी नीलामी हो जाए तो गवर्नमेंट को उसका रेवेन्यू भी आएगा। जावेद इकबाल, आपका बहुत शुक्रिया। अब रुख करते हैं कश्मीर का इंडस हाईवे 6 माह पहले करोड़ों रुपए की लागत से तामीर हुआ, लेकिन इस 6 माह के कलील अरसे में ही गरीब आवाम के करोड़ों रुपए टैक्स से बनी ये शाहराह टूट फूट का शिकार हो गई, जो कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स की अंधाधुंध करप्शन की कहानी सुना रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा से। जी गुलाम मुर्तज़ा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मीर मेन इंडस हाईवे के मकाम पर। 6 माह गुजरने के बाद जो मेन इंडस हाईवे मुकम्मल तौर पर खस्ता हाली का शिकार हो गया। ना किसी मटीरियल इस्तेमाल करने की वजह से जो मेन इंडस हाईवे मुकम्मल तौर पर खस्ता हाली का शिकार हो गया। गड्ढे पड़ने की वजह से हादसा तो रोज़ के मामूल बन चुके हैं, लेकिन जो यहाँ के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है उनकी जो करप्शन के वज़ाइया खुले सबूत सामने आ गए हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, जो शहर के लोगों से बातचीत तो उनका यही कहना था कि जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर की नाअहली की वजह से जो 6 माह गुजरने के पहले ही जो ना किसी मटेरियल इस्तेमाल करने से जो रोड के इस्तेम गड्ढे पड़ गए हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, जब शहरी हजरात से हमारा बातचीत तो उनका यही कहना था कि ना किसी मटेरियल इस्तेमाल करने की वजह से अभी तक जो है इस रोड को दोबारा तामीर नहीं किया गया। जब हमारा ताजिर हजरात से बात हो, उनका यही कहना था कि धूल मट्टी उठने की वजह से जो है हमारी कारोबार भी बुरी तरह से मुतासिर हुआ। जब हमारा ड्राइवर हजरात से बातचीत हुआ, ड्राइवर हजरात ने भी यही क्या लाखों रुपए की टूल वसूली तो की जाती है, लेकिन जो सिंध के रोडों की हालात यही आपके सामने दिखाई देना। उन्होंने गुलाम मुर्तज़ा, आपका बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर पीर में मकामी डेवलपर मियां नज़र हुसैन की दिन ब दिन कामयाबी देकर उनको बदनाम करने में चंद शरपसंद अनासिर सरगर्म हो चुके हैं। मियां नज़र का कहना है कि मुझे बदनाम करने की एक नाकाम कोशिश की जा रही है, ये सब भत्ता लेने के लिए किया जा रहा है, जिसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। इस वक्त मियां नज़र हुसैन हमारे नुमाइंदे आसिफ इकबाल के हमरा मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जी आसिफ, आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया। मैं इस वक्त सब्जी मंडी के डेवलपर मियां नज़र के हमरा मौजूद हूँ। पिछले हफ्ते से इनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा जो है चल रहा है सोशल मीडिया पे। इन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि हक़ाइक़ क्या है। जी सर बताइएगा क्या। जी मैं एक टाउन प्लानर हूँ। मैंने जौनपुर अड्डा, उसके बाद ज़ाहिर पीर, सरदारगढ़, बांग, राजनपुर ज़िला में टाउन प्लान किए हैं, और मुझे कोई चंद भत्ताखोर सहाफ़त के नाम पर ऐसे लोग हैं जो मुझसे 10-20 लाख मांगते हैं, जिनको मैं इनकारी हूँ, क्योंकि मेरी सारी टाउन अप्रूव्ड है, मेरे सारे मामला क्लियर है। मैं अल-ऐलान हर इदारे को कहता हूँ कि मुझे किसी ने चेक करना है कर सके, मुझे कोई डाउट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा इन भत्ताखोरों को मैं भत्ताखोरी नहीं दूंगा। मैं हक हलाल और रिज़्क़ हलाल कमा रहा हूँ, मैं क्यों भत्ताखोरी करूँ। और इसके लिए मेरी गुजारिश है इंतज़ामिया से, DG FIA, IG पंजाब पुलिस और DG एंटी करप्शन और वज़ीर आज़म साहब से कि इनको ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और मुझे चेक करने के लिए बेशक कोई इदारा आ सकता है, मेरी जो भी टाउन प्लान है उनको चेक कर सकते हैं, मेरा कोई डाउट होगा मैं उसकी सजा भुगतूँ। जी जैसा कि इनका बताना है कि ये अपने तरीके से ये बिल्कुल साफ शफाफ काम कर रहे हैं, तो कुछ भत्ताखोर जो है इनको जो है ना परेशान कर रहे हैं, भत्ता ना देने की सूरत में इन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। इनका बताना है कि इदारों से यही दरख्वास्त। आसिफ, आपका बहुत शुक्रिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर बद इंतजामी अरूज पर पहुंच गई अमला सिफारिशियों को नवाजने में जुट गया। लाइनों में लगे मर्द खवातीन खवार होने लगे। परेशानी का शिकार खवातीन यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया के खिलाफ फट पड़ी। इस बारे में मजीद जान लेते हैं हमारी रिपोर्टर खतीजा साबिर से। जी खतीजा, आगाह कीजिएगा। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ गरीश और इलामा इकबाल रोड यूटिलिटी स्टोर पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ मर्द हजरात की लाइन लगी हुई है और एक तरफ खवातीन की लाइन है। तो इनसे बात करते हैं कि क्या मुश्किलात है और महंगाई की वजह से क्या इनको दरपेश मुश्किलात हैं, जिनकी वजह से आज हमारी खवातीन भी आके लाइन में लगी हुई हैं। जी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी आंटी, कि यूटिलिटी स्टोर के बाद जो लाइन खवातीन की भी लगी हुई है, इसकी वजूहात क्या है? यहाँ आटा वैसे 1300 का 20 किलो आता है, यहाँ लाइन में लगता है, हम लेते हैं घी और आटा और चीनी, ये सस्ते मिल जाते हैं ज़रा कम रेंज में, इसलिए हम लेते हैं। और जो एक फिक्स रेट है, जो एक फिक्स पॉलिसी है, उस वजह से क्या मुश्किल है? इनमें से बस यही है कि हम जी
खतीजा आपका बहुत शुक्रिया। चुनिया में वापडा एहलकार शहरियों से रिश्वत बटोरने लगे, फेफड़ों के मर्ज में मुब्तला गरीब शहरी से सरफराज नामी वापडा एहलकार ने ट्रांसफार्मर की तब्दीली के लिए 15,000 रुपए रिश्वत वसूल की है, जिसकी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। क्या माजरा है ये जानते हैं हमारे नुमाइंदा राना इरफान हैदर से। जी राना इरफान, आगाह कीजिएगा। जी, ये वापडा चुनिया सब डिवीजन शांगामांगा का सरफराज नामी लाइन सुपरिटेंडेंट है और शहरियों से ट्रांसफार्मर की तब्दीली और मरम्मत, मीटर्स की इंस्टॉलेशन और बिजली की बहाली के सिलसिला में इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने के हवाले से बदनामे जमाना है। शहरियों ने जब इस हवाले से शिकायत की तो हमारा रास्ता एक ऐसे शहरी से हुआ जिससे इसने 15,000 रुपये रिश्वत वसूल की। इस हवाले से जब हमने शहरी से इल्जाम की जांच पड़ताल की तो शहरी ने रिश्वत वसूली की वीडियो फराहम करते हुए रकम वापस दिलवाने के लिए किरदार अदा करने का कहा। मुकम्मल तस्दीक के बाद जब हमने इस सरफराज नामी एलआई से रब्ता किया तो इसे इल्जाम के मुताबिक आगाह किया तो इसने इल्जाम की तरदीद की। इसके बाद जब हमने इसे वीडियो सबूत काम करके फेफड़ों के मर्ज में मुब्तला गरीब शहरी की रकम वापस लौटाने का और मौकफ देने का कहा तो इसने मौकफ देने या रकम वापस लौटाने की बजाय खबर चलाने पर मुख्तलिफ जराये से दबाव डालने की नाकाम कोशिशों, संगीन नताइज और बिजली चोरी के झूठे पर्चों में मुलव्वस करने की धमकियां दी। तमाम धमकियों को नजरअंदाज करने के बाद जब हमने इसे कहा कि बतौर आजाद और जिम्मेदार साथी की हैसियत से हमारा फर्ज ये है कि हम इल्जाम लाए का मौका भी लोगों के सामने लाए और इसने मौकफ देने की बजाय धमकी अमेज रवैया बरकरार रखा। शहरियों ने आला हुकाम से प्राइस में गफलत और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने वाले मुबैना तौर पर रिश्वत खोरी में मुलव्वस सरफराज नामी वापडा एहलकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। जी राना इरफान, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।